21 दिसंबर की रात मशहूर व्लॉगर सैयद खालिद शाह के एजाज़ में जापान के सीनियर बिजनेसमैन नदीम अंजुम ने गुम्मा कैंट के मुकामी रेस्टोरेंट में एक आशाइये का एहतमाम किया। इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मशहूर बिजनेसमैनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿੰਗ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਨਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵਧਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਆਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਇਸ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਂਝ ਉਹ ਗਲਤ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਓ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਾਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਰਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਮਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦਾਦੇ ਮਾਰਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਥਮਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मेरा ख्याल करना तकरीबन कुछ नहीं तो 90% लोग तो मैं जानते ने ना मेरा रियाज गुजरे, लेकिन मैं तो गल्लां ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਸੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਸੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 2 ਲੜਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 2 ਲੜਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 91 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 2 ਲੜਕੇ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਕੋ ਲਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੋਂ ਘਟਦਾ। ਉੱਥੇ 12 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਕੈਂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ 12 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਸੀਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਖਵਾਜਾ ਵਸੀਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਐਟ ਰੂਮ ਐਜ਼ ਦ ਰੋਮਨਸ ਡੂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। मेरा नाम मुमताज़ शाह है जी, इबरा की कोगा कैंप तो मैं आया ते आके बड़ी खुशी हुई है। नदीम भाई ने मैं स्पेशली खराज तहसीन पेश करना कि सारे दोस्तों को इकट्ठा किया ने। मेरा ख्याल है सारे इतने हूँ सीनियर ही हैं, मासवा चंद एक साढ़े जोड़े नौजवान ने ते जेह्ड़े एफर्ट्स ने सारे अपने अपने तौर पर कीतियां ने ते हुण जेह्ड़े हक और सच्चाई नाल साथ देने वास्ते जेह्ड़े सारे इत्थे असीं इकट्ठे होए हैं। अल्लाह पाक सानू इसकी तौफीक देवे और जेह्ड़े अपने से छोटे मोटे अवल तो कोई नहीं, लेकिन अगर इख्तलाफात है भी ने
تو انہوں تو بالا ہو کے اللہ پاک اساں عظیم مقصد سے کوشش کریں. آمین. بہت شکریہ. برا کی کہن بندوشی تو آیا جی بڑی خوشی سے نال ہوئی مل کے سب نال. بہت شکریہ تہاڈا ارینج کرن سب نوں ملن دا. تے میرا کہن دا بس ایک دو پوائنٹ ہی نے. تے جاپان دے وچ رہ کے جڑے جلسے جلوس کردے ہیں سڑکاں تے شور شرابے کرنے ہیں اپنی آواز سے لوگوں نے سمجھ نہیں آتی. تو میں سم ٹائم ویڈیو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا کہ یار اسی لوگ پڑھے لکھے لوگ مولوی صاحب سانوں سمجھانا چاہیے لیکن وہ آپ اگے ہو کے جلسے جلوس کرتے ہوں. تو جاپنی جڑے ادھر ادھر سے پھرتے پھرتے وہ کہتے ہیں یار کی ہو رہا تماشا ہے. انہوں نے نہیں سمجھ لگتی پہ کہ کی مقصد ہوتے. بس وہ جلسے جلوس ختم ہونے چاہیے. تو وہ جڑا وہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے کہ مسجد بیٹھ کے عبادت کریں. اس تو علاوہ ایک اور جڑی ہے مطلب کافی رول جڑے نے وہ فالو اپ نہیں کرتے اسی لوگ. اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے کرنے چاہیے. جنہوں نہیں پتا ایک دوسرے کو پوچھ لیں. تو یہ ایک دو پوائنٹ ہے نے. باقی تھی بہتر سمجھتے ہو قبرستان کے مطابق جڑا نہیں وہ جیپنیز الاؤ نہیں کرتے پے وہ سارے مل جل کے اسی جاواں گے کٹھے ہو کے. یا تھی جڑا کہ ایک پیپر ہی ایک سائن ہی کافی نے کہ انے بندے سارے نال اٹیچ ہے نے. ساری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پوری کرنی چاہیے. میرا بس یہی پوائنٹ ہے. نام بتا میرا بابو کا نام بتا. السلام علیکم. میرا نام چودھری عبد الرحمان ہے اور میرے بابا کا نام ریاض چودھری. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے میں پہلے اپنے ندیم بڑے اچھے دوست ہیں میرے ان کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنے دور سے بلایا ہے. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ مل بیٹھے ہیں. کافی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور میرا نام ملک یونس سوال ہے. میں چکسے میں رہتا ہوں اور میرا بھی کاروبار بھی گاڑیوں واڑیوں کا ہے ایک ساتھ. اور مجھے بھی 40 سال ہو گئے تقریباً 87 میں ہم لوگ 87 سے پہلے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے صدر بننا چاہتے ہیں. اب کون اتفاق کرے گا؟ جس کو پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے بھی صدر بنا. اور دوسرے کو ہمیں اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم صدر بنائیں. وہ خود صدر نہ بنے, یہاں خود ساختہ صدر بن جاتے ہیں کہ مجھے یہاں صدارت چاہیے. تو سب مل کے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ یار یہ ہماری بات سنی جائے کہیں. اس میں ہمارے سب مل کے نگویا تو یاما اور نگاتا گیفو جو بھی جدھر ہیں فکوشیما سب لوگ مل کے یہ کوئی بھی نہیں کر رہا. ہم کاروبار تو کر رہے ہیں, ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا, ہم نے محنت کا پیسہ دیا ہے ان کو. یہ آپ مانیں گے؟ پہلے ہم نے فیکٹریوں میں کام کیے ہیں, پھر اسی سے پیسہ بنا کے اپنی کمپنیاں اسٹارٹ کی ہیں, اپنی کمپنیوں میں کاروبار کیے. تو انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا. وہی بچوں کو کتنا دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹیکس کتنے دیتے ہیں. کمپنی کا الگ, گاڑی کا الگ, گھر کا الگ, بہت زیادہ ٹیکسز ہے نا. آپ کو ساری بات پتا ہے. بات یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا اور ہم رہے ہیں سکون سے, کیونکہ ہم لوگوں نے محنت کی تھی اور ہمیں اندازہ تھا کہ جاپان میں کیسے رہنا ہے. یہ جو پرابلم ابھی آ رہے ہیں نا, سوشل میڈیا بھی ہے, مگر ہمارے جو ینگ لڑکے آ رہے ہیں نا جن کو ہم ایئرپورٹ سے لے کر آ کر گھر میں کھانا کھلاتے سکھاتے ہیں نا, وہ آرام سے بستر پہ, وہی ہمارے لیے پرابلم کر رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جانا کدھر ہے. ایک ایک کمرے میں ہم ٹوکیو میں مطلب 8-10 بندے ہوتے تھے جس میں 3 بندے رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور کتنی مشکل سے ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے, کوئی نائٹ کی ڈیوٹی کو صبح کی. اور سب کیا کیا ہے, اپنی فیملیوں کے لیے کیا ہے, اپنے والدین کے لیے کیا ہے, ان کی خوشیوں کے لیے کیا. ہم لوگ اتنے, آپ لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں, حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ سب کسی بیٹے نے اتنا قربانی نہیں دی ہوگی. پردیس میں آنا, صبح اٹھنا, سردی گرمی جھڑکیں, زبانیں بھی نہیں آتی تھی. آپ کو سب کو پتا ہے یہ بات تو ایسی ہے. پھر چھاپے, پھر ایک خوف نہیں کئی خوف ہوتے تھے. اس کے باوجود ثابت قدم رہے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے سوچے. وہ شاید ان کی دعاؤں سے بھی ہمیں اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم جہاں تک پہنچ گئے. آج اپنے کاروبار ہیں, گھر ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو ہمیں سکون تھا. یہ 2 سالوں سے, یہ جو 1.5 سال ہو نا, سوشل میڈیا بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بچے جو آئے ہیں, کیونکہ ہم ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. حلال فوڈ مل رہا ہے. ہم حلال فوڈ کے لیے ایک ٹرین پہ 1.5 گھنٹہ جا کے مرغی لاتے تھے حلال, وہ ایک بکروں میں ملتی تھی. یہ غالب صاحب الفلا, ہاں وہ کاچا ماچی جاتے تھے, یا حلال فوڈ یہ تھا الفلا والا. ٹھیک ہے. تو کہنے کے مقصد ہمیں بھی سوچنا چاہیے. یہ صرف جاپانی غلط نہیں ہے, ہم لوگ بھی غلط ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے. کوئی برائی نہیں ہے, اپنی غلطی ماننا کوئی برائی ہے.
हमें इस मुआशरे ने सिखाया है। हम भी पहले इस तरह नहीं थे, मगर जब रहे हैं कि सच्चाई में बड़ी ताकत है। आप इनको सच्ची बात कहें, आपको कई मसलों में ये वैसे छोड़ देते हैं, यार इसने कह दिया सच्चा, चलो आइंदा नहीं करे, खत्म होगी बात। हमारे मुल्क में आप सच भी कहें, वो आपको उल्टा लटकाते हैं, अच्छा इसको तो और मारो, पैसे दे भाई, आपको पता है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की पोजीशन है, यहां भी हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, मगर प्लीज जो भी बनाए तो किसी एक बंदे पे हमने मुतफिक होना है, कोई सदर नहीं बने, मुझे सदर, ये गलत बात, यही जहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयां शुरू, हम एक दूसरे इतने क्लोज दोस्त, बाद में दुश्मनियां शुरू हो गई इस बात पे ना। हालांकि कोई नहीं, सदारत में कौन सा आपको फूल लग रहा है, कौन सा क्राउन लग रहा है, क्या आपको मिला है, कुछ भी नहीं मिला। खामखा आपने दुश्मनियां पा रही हैं, आपके करीब दोस्त जिनके साथ उठना बैठना बचपन गुजारा, आप जाहिर है एक आदमी से 40 साल आप गुजारे हैं, तो ये तो फैमिली आप लोग हमारी है, वो फैमिली तो नहीं है, वो तो दूर है, वो तो हम कभी साल बाद 2 साल बाद जाते हैं तो मिलते हैं। अब फैमिली तो आप लोग सब है। हमें कुछ हो जाएगा, मुझे पूछने आएंगे, खुदा ना करे डेथ हो जाती, जनाजा पाकिस्तानी पढ़ते हैं, आकर उठा के चारपाई वो लेके जाते हैं। तो हमारे में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, थोड़ा ये हसद को हमें खत्म करना चाहिए। अब हमारी उम्रें ऐसी नहीं है, 60+ हो गए हम लोग, और इतना अब टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम कोई आगे पता नहीं कितने साल जिएंगे। यही हमारी 70, वो ज्यादा भी हो तो 70+ होगी, ठीक है। तो मेरा ये मकसद है कि यहां भी हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, किसी एक प्लेटफॉर्म पे होकर इनसे बात की जाए, और ये बात सुनते हैं। जापानी उस तरह नहीं है जिस तरह यूरोप, और वहां पे हमें जलील, और वो आपको पता ही है ना। जब मैं तो इंग्लैंड में गया तो मेरा 15 दिन नहीं रहा, मैंने कहा यार उनका बिहेव, उठना बैठना, जापान तो क्या बात है। वो हमें तंग किसी ने किया, अब तंग इसलिए कर रहे हैं कि हम तंग कर रहे हैं। गाड़ी गलत पार्क कर देना, ठीक है, किसी दूसरे का प्राइवेसी का ख्याल ना करना, दूसरे को तंग करना, तो जाहिर है वो उसका मुल्क है ना, हमारा मुल्क तो नहीं है। इससे ज्यादा तो अरबी हमें गालियां देते हैं, मारते भी हैं, ये तो आदमी नहीं, फिर भी इनकी शराफत है, खामोश हो जाते हैं। कल वो करते हैं, किसी को कंप्लेन कर देते हैं, मगर हमें आकर टच नहीं करते फिजिकली, वो तो उधर ही मारने शुरू हो जाते हैं। और मलेशिया में अभी पिछले गेहूं मेरा ख्याल है 2 महीने पहले की बात है, मलेशिया में तो आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, तो आप कहते हैं पैसे तो नहीं, तो मैं तो बंद करने लगूं गाड़ी, चलान करना जो भी उसे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये सुनते, कहते नहीं सुनते पैसे तो, वो भी मुसलमान मुल्क है, तो कहने के लिए उससे तो भाई बेहतर है, कई दर्जे हम लोग बेहतर है, और सुकून में, और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी दौलत से हमने घर भी बसाए हैं, शादियां भी बहनों और भाइयों की हैं, घर भी आबाद किए हैं, जमीनें ली हैं, उनको खुशहाली दी है, तो ये हलाल कमाया है। और अब सब लोग ऐसे हैं कि हमने हलाल कमाया हुआ है। कोई यहाँ हराम का पैसा, आपको पता है ज्यादा देर वो बंदा टिकता नहीं है, पकड़ लेते हैं, साल होगा तो इससे ज्यादा नहीं, यहाँ पे वो चीजें नहीं चलती। हम लोगों ने अपने हालात, तो आज हम इस वक्त से बैठेंगे, हम सारे ऑनर है, आप कंपनियों के मालिक हैं, एक दो बंदा आपके पास काम करता होगा, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। आप प्रेसिडेंट है, उसकी एक हैसियत होती है, वो हमें नहीं बनता, एक लेवल है। तो कहने का मकसद एक तो ये, हमें यहाँ पे ये कब्रिस्तान का मसला हो गया, ये जो भी अभी वीजों के भी मसले हैं, अगर हम इनके 3-4 ऐसे MNA MPA MNO को मिले, अपने अपने इलाके में सिटी ऑफिस में जमा कराएं, वो भी होगी, क्योंकि ये आगे चलाते हैं हर बात। ये अभी जो हो रहा है ना, इमिग्रेशन या पुलिस, ऐसे नहीं है, ये लिखते हैं, हर साल की रिपोर्ट देते हैं, ये हुआ, इस तरह हादसा हुआ, फिर वो आगे फैसला करते हैं कि अच्छा क्या करना चाहिए, इस पे कानून बनाए, ठीक है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी एफर्ट करें, फिर इत्तेफाक करें। अब इत्तेफाक में रहेंगे। दूसरा, ये मेरे भाई ने बात की है कि ये जो हम जुलूस वगैरह निकालते हैं ना, मिलादुन नबी, या बजाय हम उसका कोई सवाब देने के, ठीक है, इनको तो पता ही नहीं था, वो तो उनका तो मजहब ही नहीं ना, उनका कसूर ही नहीं। हम उनको झंडे भी दिखा रहे हैं, नारे मार रहे हैं, मौलवी साहब आगे आगे, इन्होंने वही काम शुरू कर लिया, नी मुल्ला खतरा ईमान। अब हमें उस काम, बच्चों को समझाओ, आप दीन पढ़ो, इधर आओ, हम आगे हैं, वो जिस तरह आए हैं वो भी आपको पता है, जो करते हैं वो भी आपको, हर बात इधर कोई छुपी हुई नहीं है। तो उन्होंने इस्लाह नहीं की, और वो आप पाकिस्तान में सबसे बड़े मोल्ला वगैरह हैं, ये 2-3 दिन पहले जो बैत करने लगे थे अपने चीफ साहब के बात पे, वो आप खुद सोचे कितनी शर्म की बात है, इतने आलिम फाजल। और हमारे मस्जिद में अगर खुतबा होता हो तो कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी उठको मौलवी को नहीं कह सकता आप गलत कह रहे हैं, वो कई मरतबा कह भी जाते हैं, ये जरूरी नहीं है, वो जज्बात में आके निकाल देते हैं बात, कोई नहीं कहता, क्यों, एहतराम करते हैं। और वो बिठा के पूरा जो उन्होंने सरकारी मौलवी इकट्ठे किए हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो काबिले, आप लोगों ने ये बर्दाश्त कर लिया ना, अब तक हम करते आए हैं, जज, वकील, ये उसके आर्मी, उसके बाद ये जितना मतलब आर्मी, ये ब्यूरोक्रेट, उन सब का अब ये हो गया कि अब आखिर में ये मौलवी रह गए थे, ये थोड़ा बोलेंगे, उनको भी दबाने के लिए आखिर ये कराई गई है। इसके बाद हमारा काम जो है, अब जो हमारी आर्मी है वो चाह रही है इसराइल किसी तरीके से जाए,
हमें मौलवियों ने हमेशा ये बेचा है कि इसराइल हमारी जो है ना वो रेड लाइन है, कश्मीर हमारी रेड लाइन है। यही आर्मी ने हमें सिखाया और नारे मरवाए ना। आज किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इमरान का मैं किस्सा नहीं कर रहा कि इमरान को आप छोड़ दे, साइड पे रखे एक मर्तबा, मगर एक ऐसा मर्द हुर निकला है जो खड़ा हो गया कि नहीं ये नहीं होने दूंगा, या तो मेरे ओवर माई डेड बॉडी, या फिर मुझे, मैं तुम्हें देखता हूं क्या कर ले हो, या तो मुझे मारो, हैंग करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा मुकाबला करूं। और कर रहा है, उसने करके दिखाया। हमने रूल ऑफ लॉ के आप, मेरा नाम सैयद खालिद शाह है। मैं 81 जून से जापान में हूँ माशाल्लाह। और मेरे साथ के तकरीबन अब एक ही 2 बच्चे हैं, एक रईस भाई बच्चे हैं और एक खान साहब बच्चे हैं, तैयब अली खान। और इस वक्त में जब मैं आया था तो मेरे ख्याल 100 पाकिस्तानी नहीं थे, और जो थे वो बिजनेसमैन थे, जॉब करने वाले बड़े कम थे। उस जमाने में आना शुरू हुए थे लोग जापान। मैंने जापान का वो दौर भी देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब हमको सोचने की बात यह है कि जो अब हम लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब कोई भी आदमी, एक भी आदमी जिसे ये नहीं कह सकता भी ये गरीब है। हाँ, कोई नए लड़के जॉब करने वाले आए हुए हो तो वो भी प्रॉपर वीजों पे आ रहे हैं, वरना आ नहीं सकते जापान। अब हो गया है जापान चेंज। अब हर आदमी बना हुआ है जेंटलमैन, हर आदमी शाचो है। चाहे 2 आदमी काम कर रहे हैं, चाहे 4 काम कर रहे हैं, तो हर आदमी अपने आप में है। तो अब उसको लैंग्वेज भी सबको आती है। ऐसा नहीं है किसी को कि 20 साल से रहता है उसको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज भी आती है। बस हमें सोचना ये चाहिए, अगर हम जापान में रहते हैं ना, जिस तरह इसको अपोजिट कर लो कि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और जापानी या कोई भी कौम बहुत ज्यादा हमारी आ गई, ईरानी आ गए, बहुत सारे रहते हैं, और वो हमारी बहनों से, बेटियों से शादियां भी कर रहे हैं, हमारी बीवी से तलाक करके शादी कर रहा है और नहीं रह रहा है गली में। जापान में सब ये हुआ, हर चीज हुई है ना। इनकी यदि शादियां की जापान में, इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, हर चीज को माना। मैंने तो ऐसे केस देखे कि उसकी बीवी से लड़के ने शादी कर ली तलाक करा के, और वो मियाँ भी बैठा हुआ और मैं ट्रांसलेटर बीच में बैठा हुआ हूँ, वो मियाँ मुझे समझा रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, बस ये देखो वो देखो। हर चीज इन्होंने बर्दाश्त की। इनसे पता क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे जो इन्होंने भी दिखाया था थोड़े सा, उसमें जाली बहुत सारे थे। रोडों पे नमाज पढ़नी, पार्कों में नमाज पढ़नी, भाई उनको हमारे मजहब का पता ही नहीं है ना भाई, वो सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं बगैर मजहब ठीक है, हमें मजहब नहीं चाहिए। तो हम किसी कौम को चेंज करने वाले कौन होते हैं कि आप जी पकड़ा वगड़ा बांध के पहुंच गया जी इस्लाम क्यों नहीं आयरी मशो। अबे भाई क्यों आयरी मशो, उसका सिकाफसू चल रहा है, वो बेहतरीन है, वो चाहता है मैं अकेला ऐसे ही रहूं। और देखिए, अगर आप ये सोचे कि अगर पाकिस्तान में ही हमारे घरों में आते, हमारी बहनों से शादियां करते, हमारे बहनों ही बन जाते ये, और कंपनियां भी खोल लेते, मर्सिडीजों में भी घूमते, हम क्या करते इनके साथ, खुदाई के साथ जिंदा जला देते। ऐसे इतने गुस्से में आ जाती कौम, पूरी कौम ना, 40-50 साल में 50 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तानियों को यहाँ पर आए हुए। तो हमको थोड़ी सी तो एहतियात करनी चाहिए ना यार। बिल्कुल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप अगर कोई भी, मैं कोई किसी खास मजहब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप रोड के ऊपर यार आप नारे लगा रहे हो, झंडे आपके, वो इस्लामी झंडे देख के वो समझते हैं टेररिस्ट हैं। वो थोड़ी जानते हैं कि यार ये ईद मिलादुन नबी हो रहा है, या ये मातम हो रहा है, या ऐसे हो रहा है। चाहे आप यकीन करो जो खेतों के बीच में भी कर रहे हो ना, इन लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। बिल्कुल। तो थोड़ी देखिए, मजहब दुनिया में मजहब जो होता है ना, वो 4 दीवारी के अंदर होता है। ये आपका मजहब है, आप शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आप 4 दीवारी अपनी बनाओ। अगर तप्पड़ नहीं है तो अपने घर में नमाज पढ़ो भाई। 4 दीवारी बनाओ, बड़ी बनाओ, जिसमें 200 गाड़ी की जगह हो, 100 आते हो तो 200 गाड़ी की जगह हो, एक बिल्डिंग हो, एक सिटी में एक मस्जिद भी हो ना, एक सिटी में एक मस्जिद। पूरे टोक्यो में, तुर्की मस्जिद में सब जाते हैं, आराम से सब कुछ है, किसी को एतराज नहीं है मवारी में, उनके अड़ोस पड़ोस में। इसी तरह देखिए, ये चीजें हम अगर नहीं मानेंगे ना, तो फिर ये क्या करेंगे, ये ऐसे ही रूल बनाएंगे। देखिए, कहीं भी ऐसा रूल नहीं हो सकता, ये तो बॉम्ब्स हो जाएगा खैर, कि कब्रिस्तान में कोई दफन नहीं होगा यहाँ, अपने मुल्क जाओ। कैसे जाओ, हम जैपनीज पासपोर्ट पे, हम कौन सा मुल्क तुम बात कर रहे हो, हम हमारा तो मुल्क ही है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए,
जिनके परमानेंट रेजिडेंस हैं और या जैपनीज पासपोर्ट है और जैपनीज बच्चे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो मेरे बच्चों को कि तुम पाकिस्तान जाओ, तो कभी पाकिस्तान गए नहीं, और क्यों जाए पाकिस्तान? अच्छा, ये तो खैर आप एक छोटा सा वकील करो ना, कंगला वकील 5 मान वाला, वो जाके उड़ा देगा कोर्ट के अंदर। ये तो कोई बात ही नहीं है जो ये मिनिस्टर जो है इन्होंने कह दी है गुस्से के अंदर। और ऐसी कई चीजें अब ये ला रहे हैं। यानी आप देखो, एक जो संध्या कुमान कितने थे पहले जो कंपनी बनाने वाले, संध्या कुमान से उठा के सांचन मान, ये तो गुस्सा ही है ना यार। भाई संध्या कुमार गोया कुमार हो सकता था, आप सख्ती कर सकते थे पेपरों में कि भाई टूरिस्ट को हम कंपनी नहीं बनाने देंगे, हम ये कर दें वो। आपने तो उठा के संध्या कुमार सांचन मान कर दिया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे ही ये कानून बनाएंगे क्योंकि ये लोग अब है गुस्से में। अच्छा, इनको रोकने का सिर्फ तरीका यही है कि जो हमें बेहतरीन लैंग्वेज बोलने वाले हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, जो हमने उन लोगों को आगे आना चाहिए। कम से कम 10-20 आदमी भी हो ना, खाली एक लॉयर करो, काम सब तमाम हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। हर मुल्क कानून पे चलता है, जापान तो खासकर चलता है। हमने साउथ अफ्रीका में जब बिल्कुल गाड़ी वालों के हालात खराब हो गए थे ना, और रिक्शो, उन्होंने कहा था रिक्शो होगा, बस एक ऑर्डर निकाल दिया था कस्टम ने कि बस कल से जो है वो रिक्शो हो जाएगा जी। मैं वो आदमी हूं, 3.5 साल मैंने रिक्शो को रोक के रखा। 180 कंपनी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी हो गई, हम सब एक हो गए और हमने एसोसिएशन बना ली। और जितने वो लोकल जो हमारे क्लियरिंग एजेंट थे, ट्रांसपोर्टर थे, कुछ लोगों की गाड़ियों का काम भी था, वो सब एक हो गए। 3.5 साल तक वो केस रुका रहा। और वो केस खराब इस वजह से हुआ कि लोग, मकसद एक लॉ बना हुआ ना अभी, तो उसको हमने खाली रुकवाया है, स्टे किया है, कराया है। तो लोग क्या करते थे कि गाड़ी सामने से कस्टम से निकाली और क्या 2 मिनट तो जिस्ट करके ले गए। अच्छा, वो वीडियो बना रहे हैं। अब जब उनके 4-5 बंदे पहुंचते थे तो वो कहते थे 1 मिनट वेट, वीडियो लगाओ। वीडियो लगाते थे, 27 आदमी मेरे जानने वाले होते थे उसमें, सारे मेरे जानने वाले थे गाड़ियों वाले। मैं उनको जाके सुबह बोलूं, यार तो सब आप गाड़ी खुद चला रहे थे यार, बगैर नंबर के। 2 गाड़ियां थी खाली, तो 2 गाड़ियां थी। हर एक का जवाब यही होता था। वो केस खराब हुआ, उन्होंने पूरे उठा के रखे, डिक्लाइन हो गया। उससे पहले बार 3.5 साल में लोगों ने अपने रिक्शो खरीद लिए। देखिए, इकट्ठा होना इस जापान में नहीं, पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल है। कितनी एसोसिएशन बनी है यहाँ। 81 से मैं देख रहा हूँ, कभी रईस भाई बनाते थे, कभी फला, कभी फला फला। एसोसिएशन नहीं चलती। हमारे यहाँ मसला ये कि हर आदमी चाहता है मैं सदर बनूं, हर आदमी चाहता है। पीटीआई में भी यही है, पीपुल्स पार्टी में भी यही है, हर कोई भी जमात दे दो जहां पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं, वहां पाकिस्तानी नहीं और कौमों का भी यही है। तो वो उसका होता है कि यार मैं सदर बनूं, बस सदर से नीचे वो राजी नहीं है, उसको राजी करना पड़ता है। वो भाई रहते सदर ना बन, यार तू कुछ और बन जा, कोई सदर से ऊपर बन जा। नहीं, मैं सदर ही बनूंगा। तो ये हमारे यहाँ है। ये तो काम नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोई, जैसे अब ये कब्रिस्तान की बात हुई है ना, मैं कब्रिस्तान को पॉइंट नहीं बना रहा, कब्रिस्तान की जो बात हुई है ना, इसके लिए खामोशी से 10-20 आदमी मिले, उन पे एतबार करो यार, उनसे कुरान उठवा लो। ये 10 आदमी है, एक ही दफा भाई हल्फ उठा दो, कोई बेईमानी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। और आप उनके बोलो वकील करें, जाके वही 10 आदमी अच्छी लैंग्वेज बोलने वाले हों, पढ़े लिखे हों, जाके वकील करें। एक वकील एक दिन में उड़ा देगा इस केस को, ये कुछ नहीं है। तो इत्तेहाद हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों के इत्तेहाद का बड़ा मसला है और कोई मसला नहीं है। जहां आप इत्तेहाद जब होते हैं ना लोगों में, एतबार होता है ना लोगों में, तो वहां पर फिर तरक्की करते हैं लोग। शुक्रिया। भूख भी लगी होगी, अभी नाश्ता का नाश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब आपस में गपशप लगाएं और खाना खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे नखरे जादू कर दिया। ओ गीते वैसे नाच भी ले, ओ गीते वैसे
ਵੈਸੇ ਨੱਚ ਵਿਲੇ Not you will Oh get the vice not you will Oh get the vice not you will Oh get the vice not you will Get the vice not you will Get the vice not you will Puri tere nekhre jaddu kar diya Oh get the vice not you will Punjabi monkey face Bhangra, Bhangra, Bhangra Punjabi Punjabi Bhangra, Bhangra Oh Bhangra, Bhangra, Bhangra Oh Bhangra Chal pi chette veliye ye Shawa, shawa Chal pi chette veliye ye Shawa, shawa Ve kuriye tere nekhre jaddu kar diya Not you will Oh get the vice not you will Oh get the vice not you will Oh get the vice not you will Punjabi monkey face Bhangra, Bhangra, Bhangra Punjabi Punjabi Bhangra, Bhangra Oh Bhangra, Bhangra, Bhangra Oh Bhangra Chal pi chette veliye ye Shawa, shawa Chal pi chette veliye ye Shawa, shawa Ve kuriye tere nekhre jaddu kar diya Oh get the vice not you will Oh get the
वैसे नाचविले नाचविले ओ गीते वैसे नाचविले ओ गीते वैसे नाचविले ओ गीते वैसे नाचविले गीते वैसे नाचविले गीते वैसे नाचविले पूरी एक तेरे नखरे जादू कर दिया ओ गीते वैसे नाचविले Oh, get there, I say not to